اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام ہے. میں تمہارا بہت احسان مند ہوں شاطر. تم نے وہ کیا ہے جو اپنے بھی نہیں کرتے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا 40 لاکھ روپے کی اتنی بڑی رقم میں کیسے واپس کروں گا. 20 لاکھ تو اسے پہلے ہی مل گئے تھے. علیان بھائی، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے سر کا صدقہ اتار دیا. آپ کے اس اپنے پن کا بہت شکریہ. آپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہماری مدد کوئی بھی نہیں کرتا. اینی تھنگ، اینی ٹائم. آپ لوگ میرے اپنے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں. یہ 40 لاکھ ادھار ہے ہم پہ. یک مشت ہو کر نہ صحیح لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے اتر دیں گے. اب اگر میں منع کروں گا تو آپ کی خودداری کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ ویسا کیجیے. شکریہ. یہ بے بسی کا وہ قطرہ ہے جسے میں صرف محسوس کر سکتی، بتا نہیں سکتی. ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کیا ہوا تمہیں؟ گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خشک ہو چکا ہے. لوگ برسوں سے وہیں جانا چھوڑ چکے تھے. ایک دن 12 سالہ فہد نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک بوڑھا شخص روز بیٹھ کر دعا کرتا ہے. فہد نے پوچھا، بابا جی جب کنواں خشک ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں پانی مانگنے نہیں امید زندہ رکھنے آتا ہوں. یہ بات فہد کے دل میں اتر گئی. اگلے دن اس نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا. سب نے مل کر کنویں کی صفائی شروع کی. انہوں نے پتھر نکالے، مٹی ہٹائی اور ارد گرد کی جھاڑیاں صاف کیں. کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک صبح اچانک کنویں کی تہہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا. پورا گاؤں حیران رہ گیا. جو کنواں برسوں سے بیکار سمجھا جاتا تھا وہ دوبارہ زندگی بن گیا. گاؤں والوں نے فہد اور اس کے دوستوں کی محنت کو سراہا اور سب نے مل کر کنویں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لی. بوڑھا شخص خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، اکثر خزانے زمین میں نہیں لوگوں کی ہمت میں چھپے ہوتے ہیں. سبق، امید اور مسلسل محنت وہ کام بھی کر دکھاتی ہے جسے دنیا ناممکن سمجھتی ہے. گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خشک ہو چکا ہے. لوگ برسوں سے وہیں جانا چھوڑ چکے تھے. ایک دن 12 سالہ فہد نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک بوڑھا شخص روز بیٹھ کر دعا کرتا ہے. فہد نے پوچھا، بابا جی جب کنواں خشک ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں پانی مانگنے نہیں امید زندہ رکھنے آتا ہوں. یہ بات فہد کے دل میں اتر گئی. اگلے دن اس نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا. سب نے مل کر کنویں کی صفائی شروع کی. انہوں نے پتھر نکالے، مٹی ہٹائی اور ارد گرد کی جھاڑیاں صاف کیں. کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک صبح اچانک کنویں کی تہہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا. پورا گاؤں حیران رہ گیا. جو کنواں برسوں سے بیکار سمجھا جاتا تھا وہ دوبارہ زندگی بن گیا. گاؤں والوں نے فہد اور اس کے دوستوں کی محنت کو سراہا اور سب نے مل کر کنویں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لی. بوڑھا شخص خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، اکثر خزانے زمین میں نہیں لوگوں کی ہمت میں چھپے ہوتے ہیں. سبق، امید اور مسلسل محنت وہ کام بھی کر دکھاتی ہے جسے دنیا ناممکن سمجھتی ہے. گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خشک ہو چکا ہے. لوگ برسوں سے وہیں جانا چھوڑ چکے تھے. ایک دن 12 سالہ فہد نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک بوڑھا شخص روز بیٹھ کر دعا کرتا ہے. فہد نے پوچھا، بابا جی جب کنواں خشک ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں پانی مانگنے نہیں امید زندہ رکھنے آتا ہوں. یہ بات فہد کے دل میں اتر گئی. اگلے دن اس نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا.
सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की।
इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक उन्हीं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियां साफ की।
कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक उन्हीं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर उन्हीं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की।
कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक उन्हीं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की।
कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक नी की तरह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुएं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर नी की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तरह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तरह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तरह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की।
कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक नी की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर नी की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की।
कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक उन्हीं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। एक दिन 12 साला फहद ने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स रोज बैठकर दुआ करता है। फहद ने पूछा, बाबा जी, जब कुआं खुश्क है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी मांगने नहीं, उम्मीद जिंदा रखने आता हूँ। ये बात फहद के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने चंद दोस्तों को जुमा किया। सबने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। इन्होंने पत्थर निकाले, मिट्टी हटाई और इर्द गिर्द की झाड़ियाँ साफ की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुबह अचानक कुएं की तह से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पूरा गांव हैरान रह गया। जो कुआं बरसों से बेकार समझा जाता था वो दोबारा जिंदगी बन गया। गांव वालों ने फहद और इसके दोस्तों की मेहनत को सराहा और सबने मिलकर कुएं की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। बूढ़ा शख्स खामोशी से वहां से चला गया। जाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अक्सर खजाने जमीन में नहीं, लोगों की हिम्मत में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत वो काम भी कर दिखाती है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना